Today we are going to learn the concept of present tense, simple present that we call. Now I would like to start with simple present tense. Let's start with our daily routine. Now, just can you tell me some of your daily chores that you do? Now, daily chores meaning your daily actions that you repeatedly do. They could be like done once a week, daily, every day, sometimes, frequently, like that. तो डेली रूटीन्स क्या होते हैं हमारे कि जब हम कोई काम रोज़ करते हैं दैट इज़ एवरी डे या फिर हम उसको कभी कभी करते हैं समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग आई वेक अप एट 5 o'clock. सो मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ तो आई वेक अप एट 5 o'clock एवरी डे. नाउ दिस इज आवर डेली एक्शन. हम रोज ही उठते हैं. कितने बजे उठते हैं वो आप बता सकते हो. एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, लाइक दैट. आई वॉश माई फेस, आई brush my teeth and so on. This is brush. Many people call it brush. Brush is in Hindi. तो आपको कहना है I brush my teeth. Now this is your daily routine. Now you can also tell about so many other routine actions. आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो उसमें जो हमारा daily routine होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. So we will discuss that in detail. Now this is the book I would suggest you to read. For your better understanding of grammar, you can refer this book, Essential English Grammar. Now in this book there is unit 5. Unit 5 tells you the exact idea of simple present tense, what exactly simple present tense is. But today in these slides we are going to see in detail simple present tense with vocabulary also. Vocabulary, you understand? Vocabulary meaning words. So these words are very very important here. This is what we are going to see today. Now let's talk about the rules and regulations. Now the most important part that we are going to see here is rules and regulations. So let's be very clear with the rules and regulations that we have here. Now simple present tense that we have. Now see the rules first with I, we, you, they. Now you know that they are pronouns I, we, you, they and plural. What do you mean by plural? Plural meaning more than one thing, one person, more than one. It could be person, place or thing, anything but more than one. So with that we use subject plus verbs first form plus object. Now this is what you have to keep in mind. And for negative sentences we use subject plus don't plus verbs first form and plus object. Now ideally speaking this is not the right way to learn English according to me, but many people think that if they don't know the structures it's very difficult for them. कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्हें structures नहीं आते हैं तो वो sentences frame कर ही नहीं सकते हैं. That's why I have introduced this particular structure to you. But I would like to tell you something without these structures also, and rather with more examples that I would like to show you. Now here you can see that here we have this I, we, you, they and plural. What does it mean? इसका मतलब है कि subject verb ये क्या है. Let's see the examples. तो इससे आपको बिल्कुल clear easily समझ में आ जाएगा. I go to school daily. मैं क्या काम करती हूँ बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. तो आई गो टू स्कूल डेली. एक कॉमन सी जो मिस्टेक हम करते हैं वो है हम इज एम आर यूज करते हैं इसके साथ. आई एम गो टू स्कूल डेली विच इज इनकरेक्ट. मैं रोज स्कूल जाती हूँ या रोज स्कूल जाता हूँ. विद दैट यू डोंट हैव टू यूज इज एम आर हेयर. ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे आप इज एम आर नहीं यूज करोगे. इज एम आर कहाँ यूज होगा वो भी आपको बताऊंगी, बट पहले आप इसको ध्यान से समझिए. आई गो टू स्कूल डेली. मैं रोज स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, दैट इज आई गो टू स्कूल. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे. पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं आई, हो सकता है यू गो टू स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली. आपको यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी आप उसके बाद कहना चाहते हो वो आप यूज करेंगे यहाँ पे. सो दिस इज योर सिंपल सेंटेंस. अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आपको डोंट यूज करना है. मैं नहीं जाती, मैं संडे को स्कूल नहीं जाती हूँ या नहीं जाता हूँ, तो आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे. सो दिस इज अबाउट योर नेगेटिव सेंटेंस. सपोज आपको क्वेश्चन बनाना है
तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, डू यू गो टू स्कूल डेली, तो ये जो डू है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम आगे लगा देंगे, देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन दैट डू यू गो टू स्कूल डेली, आप रोज स्कूल जाते हो. एंड ऑल्सो सी माई टोन, द इंटोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. डू यू गो टू स्कूल डेली, it's a question, so you are using a rising tone here, your tone is actually rising here. So do you go to school daily, like that. Now many students ask that if here we don't use is mr, so where do we use is mr, कहाँ पे use होता है. Let's see that is mr जो अब हम use करेंगे, is mr is basically used with nouns, adjectives और prepositional phrases. अब ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको कि ये nouns adjectives क्या हैं. Nouns होते हैं basically नाम, adjectives होते हैं qualities, जैसे he is very proud and arrogant. Now ये दोनों ही word quality बता रहे हैं, describe कर रहे हैं किसी के nature को, so we are using is, क्योंकि यहाँ पे कोई और action verb हमारे पास नहीं है, because जब हमारे पास verb है तब हमें is mr की ज़रूरत नहीं है, but here we don't have any main verb जिसमें कोई action है वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम qualities बता रहे हैं. That's why we are using here he is very proud and arrogant. आप बहुत सारे examples ले सकते हैं, आप किसी को भी describe करते हैं, किसी food को describe करते हैं, the food is very tasty. तो tasty कोई action नहीं है, ये सिर्फ एक quality है, इसलिए हम क्या कहेंगे, the food is very tasty, बहुत tasty है, वहाँ पे आप is mr use कर सकते हो. The other thing is that he is a doctor, वो एक डॉक्टर है, he is a doctor. So doctor again is noun, ये कोई verb नहीं है, इसमें कोई action नहीं है, that's why you are saying he is a doctor. Now see this, he is in the USA. Now in the USA in एक preposition है, तो ये जो एक पूरा phrase है इसको हम prepositional phrase कहते हैं. So when we say this he is in the USA, again यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है, that's why we are using is, just to show that we are talking about present time. हम यहाँ पे present की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे is लगाएंगे. So I hope by now this is very clear to you. And now I have tried to explain you the difference between simple present tense and present indefinite. Simple present tense दोनों चीज़ें include करता है, जिसमें is mr भी है और verb की first form भी है. तो आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को करना है जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे. बहुत ये difference बहुत ज़्यादा important है जो आपको देखना है. अब यहाँ पे एक और complexity है जो आपको overcome करनी है. And now we move on to the next slide. Now just have a look at this. Now what you are getting here is that when you talk about the structure of simple present tense, we have this different rule here, that is he, she, it और singular. पहले हमने देखा था I, we, you, they, उनके साथ हमने simple first form use की और don't लगाया. अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, that is s और es प्लस ऑब्जेक्ट. सेम वही रूल्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमें एस या ई एस यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू द टेम्पल एवरी वीकेंड. आई गो, वी गो, दे गो. बट व्हेन यू टॉक अबाउट ही, शी और इट, अगर आप किसी लड़की के रूटीन के बारे में बता रहे हैं कि वो रोज टेम्पल जाती है, तो फिर से हमें इज एम आर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें एस या ई एस लगाएंगे. सो शी गोज टू द टेम्पल एवरी वीकेंड. अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डोंट की जगह आपको डजंट यूज करना है. तो शी डजंट गो टू द टेम्पल ड्यूरिंग वीकडेज. क्वेश्चन जब बनाना है तो डज आगे आ जाएगा, डज शी गो टू द टेम्पल, लाइक दैट. सो इट्स वेरी सिंपल. द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू प्रैक्टिस इट अ लॉट. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द प्रैक्टिस हियर. नाउ look at these adverbs which you can use: always, usually, often, sometimes and never. Now always हम कब यूज करेंगे? जो हम काम हमेशा करते हैं. I always have a bath. So this is always, हमेशा. Usually जो आप ज़्यादातर करते हो, usually, mostly, so we use this.
एक आध बार शायद आप ना करो, बट मोस्टली आप करते हो, दैट इज़ यूजुअली। ऑफन मतलब कई बार, टी साइलेंट है यहाँ पे। सो आई ऑफन गो टू रेस्टोरेंट्स टू हैव माई लंच और डिनर। आई ऑफन गो, कई बार जाते हो आप। समटाइम्स मतलब कभी कभी, कभी कभी आप वो काम करते हो। समटाइम्स आई गो टू द टेम्पल, समटाइम्स आई हैव जंक फूड, समटाइम्स आई टेक लिकर, अल्कोहल। कभी कभी आप लिकर लेते हो, अल्कोहल लेते हो, दैट इज़ वाइन। देन वी हैव नेवर, कभी भी नहीं, जो काम आप कभी नहीं करते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप कहोगे आई नेवर ईट मीट, आई नेवर ईट नॉन वेज फूड। सो कभी भी नहीं, वो आप काम कभी भी नहीं करते हो। तो जब आप प्रेजेंट यूज़ करते हो तो आप इन ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर सकते हो कि आप कितनी बार करते हो वो काम, समटाइम्स, यूजुअली, मोस्टली। और अगर बहुत ही ना के बराबर करते हो वो काम तो रेयरली या हार्डली भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा फॉर एग्जांपल, आई हार्डली डू एनी स्पोकन प्रैक्टिस। बहुत ही ना के बराबर आप स्पोकन प्रैक्टिस करते हो तो आई हार्डली डू एनी spoken practice, or I rarely do any spoken practice, you can say that. Okay, so now we move on to the reading time. Now this reading is very very important, and I have introduced this reading to show you the vocabulary as well as the very important part. जो structures हमने सीखे हैं, don't doesn't काफ़ी confusing लगता है, but it's very very simple. So let's move ahead and read this passage. Now I'm reading it, listen to it very carefully. Now let's start with this. I live at Shalimar Bagh in Delhi. I live in a nuclear family. I live with my parents and sister. मैं दिल्ली के शालीमार बाग में रहता हूँ। मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, चाचा चाची या दादा दादी उसमें नहीं होते हैं। So it's a separate family which includes parents as well as children. Okay, so we don't have grandparents here, we don't have uncle, aunt, cousins, etc. So this is a difference. I live with my parents and sister. जो भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं मैं उनके साथ रहता हूँ, वो आप बताएंगे कि मैं अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स एंड सिस्टर, बहन के साथ रहता हूँ या रहती हूँ। इट्स लाइक दैट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि मैं रहता हूँ, आई लिव। हूँ है हाँ के लिए हमें यहाँ पे इज एम आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एक सिंपल सा रूल है, अगर आपने एक बार समझ लिया तो इट विल हेल्प यू एवरीवेयर, बिकॉज प्रेजेंट टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलने में, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। आई एम लिव, आई एम गो, आई एम कम नहीं कहना है, सो जस्ट अवॉइड दैट। आई वेकअप एट 7 o'clock, हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो मैं 7 बजे उठता हूँ। एट यूज़ होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, आप कितने बजे उठते हो या कोई भी काम आप कितने बजे करते हो शार्प, तो एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, लाइक दैट। आई वेकअप, अब हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी इज एम आर की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमारे पास मेन एक्शन वर्ड है, इसलिए हमें और किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। आई गेट फ्रेश, आई ब्रश माई टीथ, आई गागल विद वाटर, गागल होता है गरारे करना। आई बेद, आई हैव अ बाथ भी कह सकते हो आप, और आई बेद, बाथ नाउन है और बेद वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है और स्पेलिंग भी यहाँ पे ई लग जाएगा, एंड वी प्रोनाउंस इट एज बेद। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बेदिंग, ही इज हैविंग अ बाथ और ही इज बेदिंग, क्योंकि आपको जब आई एन जी लगाना है तो यू हैव टू यूज वर्ब हियर। पुट ऑन क्लोथ्स, पुट ऑन होता है पहनना, कपड़े पहनते हो आप। कॉम योर हेयर, कॉम, बी साइलेंट है यहाँ पे, कॉम कंघी करना, बालों में आप कंघी करते हो। एंड देन हैव ब्रेकफास्ट, हैव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे क्योंकि हैव पोजेशन के लिए भी यूज होता है, आई हैव समथिंग, बट हियर इट इज यूज्ड फॉर ईट एंड ड्रिंक। ब्रेकफास्ट में आप जो भी कुछ खाते पीते हो यू कैन यूज हैव फॉर दैट। नाउ आई बोर्ड अ बस टू गो टू माई कॉलेज, मैं बस पकड़ता हूँ, बस में चढ़ना, बस पकड़ना, उसके लिए हम बोर्ड यूज करेंगे। देन आई गेट डाउन एट मधुबन चौक, आप कहाँ पे उतरते हो? मधुबन चौक एक प्लेस का नाम है। देन आई वॉक ऑन फुट फॉर अ फ्यू माइल्स, फिर मैं पैदल चलता हूँ, फिर मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, आई रीच देयर। आई अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 9:30 to 11:30, 9:30 से 11:30 तक मैं क्लास अटेंड करता हूँ। तो जब आप एक शुरुआत का टाइम और एक बाद का टाइम बताते हो कि आप कब से कब तक वो काम करते हो, तो वी यूज फ्रॉम एंड टू। When I reach home by 12:30, I watch TV till 2 o'clock,
and then after having my lunch I sleep for 2 hours. When I reach home by 12:30, अब ये by और till दोनों बहुत important है यहाँ पे. In Hindi, if you translate by and till means तब तक. मैं 2 बजे तक टीवी देखता हूँ और मैं 12:30 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ. लेकिन English में ideally speaking, this both the prepositions have different meanings. By हम तब यूज़ करेंगे जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि तब तक वो काम कंप्लीट हो जाता है, उससे पहले 12:30 से पहले आप कभी भी पहुंच जाते हो, लेकिन एक ही बार वो काम हो रहा है 12:30 से पहले. 12:30 आपने एक लास्ट टाइम दे दिया कि इसके बाद नहीं, इससे पहले आप पहुंच जाते हो. बट जब आप टिल 2 o'clock कहते हो तो आप वो काम लगातार, मीनिंग यू आर डूइंग दैट वर्क कॉन्स्टेंटली टिल दैट टाइम. यहाँ पे बीच में कोई ब्रेक नहीं है और वो काम लगातार हो रहा है. आई वॉच टेलीविजन टिल 2 o'clock and I reach home. I cannot say I reach home till 12:30. इसका मतलब हो जाएगा कि आप 12:30 तक पहुंचते ही रहते हो, which is not possible. So बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है इसको, by and till. And then after having my lunch करने के बाद I sleep for 2 hours. For यूज़ होता है ड्यूरेशन के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, like that. So for 5 minutes, for 10 minutes, and so on. I watch television for 2 hours. You can say like that also. I watch television till 2 o'clock. तो 2 hours में आप ड्यूरेशन बता रहे हैं एंड टिल 2 o'clock में आप लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि आप तब तक टीवी देखते हैं. सो दैट इज टिल. लेकिन वहाँ पे वो काम लगातार होता है. सो दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट. सो टिल और बाय बोथ आर डिफरेंट. फ्रॉम टू, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड सम prepositions also to you. एक यहाँ पे to मैंने यूज किया है, that is कि कहाँ जाते हो आप. डेस्टिनेशन के लिए to यूज होगा, जैसे I'm talking to you, you are listening to me, and likewise you listen to the music. And I go to college, I go to my school, I go to my office. So to, आप कहाँ पे जा रहे हो, please come to me, you can say like that. तो ये कुछ examples हैं to के which you can use. Now one more important thing. I always have breakfast after having a shower. I always go jogging before having supper. Now see these 2 examples. यहाँ पे हमने एक और चीज़ यूज़ की है कि after having a shower, शावर लेने के बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ या ब्रेकफास्ट खाता हूँ. आफ्टर एंड बिफोर जब भी आप ये prepositions यूज़ करेंगे, कोई भी preposition यूज़ करेंगे, तो जो verb है that goes in ing form. Always remember that. रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, इफ़ यू जस्ट मेक इट अ हैबिट टू यूज़ इट लाइक दैट, देन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू यू टू अंडरस्टैंड. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड that here you are using I always have breakfast after having a shower, and I always go jogging before having supper. Supper is the light food that you have in the evening around 6 o'clock, 7 o'clock that. So some people skip their dinner and they just have their supper. It's a very light food that you have. Now, I usually brush my teeth before going to bed. Now, I brush my teeth, simple sentence. Usually brush, I mostly brush, I always brush, you can say like that. लेकिन before के बाद हमें जो verb है वो simple नहीं होगा. That is without is MR but ing form. After going there, after coming from there, and after cooking food, before cooking food, after बाद में और before पहले. ठीक है, before cooking food और before having food I pray to God. What does it mean? क्या मतलब हुआ इसका कि before having food, खाना खाने से पहले I always pray to God, I always wash my hands, that. So I hope this is clear. Sometimes I watch TV after doing my homework. Homework करने के बाद मैं TV देखता हूँ कभी कभी, right? I always cook meal after coming back from the market. Market से आने के बाद अगर आप cook करते हो तो after coming back from the market, or you can say that before going to the market I cook food. So this is the difference we have here. So remember this rule, and this is very important. So I just summarize the things again in short, that simple present tense is used for your daily routine, the things, the actions that you do daily or regularly. Mostly, sometimes, or you never do them. The other thing is that the rules, यहाँ पे आप simple sentences में only you use verbs first form
and with negative we use don't or doesn't. There is one more rule that we have seen कि जब आप singular की बात करेंगे या you use he, she, it, तो you have to use s or es. So this is another very important thing. Now for this I would like to tell you one thing, that now you can come forward and talk about your friends day to day life. You can ask them questions. आप उनसे questions पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, जो मैंने आपको पैटर्न दी है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो फॉर अ वॉक, डू यू कुक फूड, do you go to the temple, and then your friend will reply that yes, I go to the temple, I always go to the temple, I sometimes go to the temple. And after that you will come forward and talk about your friends डे टू डे रूटीन लाइफ. जब आप अपने फ्रेंड के बारे में बताएंगे तो आप उसके लिए ही या शी यूज़ करेंगे, और उससे में आपको याद रखना है कि यू हैव टू यूज़ एस और ई एस. दैट यस, माई फ्रेंड गोज टू द टेम्पल, he cooks food, or he doesn't cook food, like that. So you can practice both the structures this way. I wish you all the best and good luck.